और कठिन मराहिल से गुजरने के बाद एक एसएसजी कमांडो 20 फौजियों पर भारी पड़ता है। एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है और कुछ ऐसे पोशीदा राजों से पर्दा उठाया जाएगा जिससे आप यकीनन नावाकिफ होंगे और आपको फ्रंट रोल लगाने पड़ते हैं, चाहे आपने कितना ही कीमती लिबास जेबे तन किया हो। एसएसजी के जवानों के जिस्म को मजबूत करने के लिए इनको एक बोरी में डालकर इनकी खूब छितरोल की जाती है। पुलिस वाले को थाने च एक छितर हुंदा ना भाई, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। बुलबुल ਜਿਹੜੀ है ना वो ब्लू हो ਜਾਂਦੀ है। जब तक आपने जवानों को एक कुत्ते के मुंह से हड्डी भी छीननी होती है और यकीन यानी कि मोदी ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਮਹਿਕਮਾ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਾਕਮਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਮਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਬਾਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਸਾਮਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ ਗਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇੰਡੀਅਨ, ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ, ਤਰਾਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਮੀਮਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਾਂ ਮੀਮਸ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ ਬਾਈ ਫੂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਬਿਕਮ ਐਸਐਸਜੀ ਕਮਾਂਡੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਸਐਸਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना। आप देखते वीडियो आज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी। दोस्तों कमांडो किसी भी आर्मी के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, जो कि एक आम फौजी से कई ज्यादा वेल ट्रेंड और ताकतवर होता है। कमांडोज को उन मिशंस के लिए चुना जाता है जो आम फौजी सरंजाम नहीं दे पाते। पाकिस्तानी कमांडो फोर्स का नाम ਯਾਰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਜਾਨੂ ਆ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ। SSG है यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप। कमांडोज की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक ट्रेनिंग समझी जाती है। कमांडोज बनने के लिए हड्डियों और जिस्म की मजबूती के साथ साथ आसाब और इरादों की मजबूती भी जरूरी होती है। इंतहाई सख्त और कठिन मराहिल से गुजरने के बाद एक SSG कमांडो 20 फौजियों पर भारी पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SSG कमांडोज को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, SSG कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है और कुछ ऐसे पोशीदा राजों से पर्दा उठाया जाएगा जिससे आप यकीनन नावाकिफ होंगे। दोस्तों SSG में शामिल होने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फौजी यानी आर्मी मैन होना जरूरी है और सिर्फ ओके यानी कि डायरेक्ट एसएसजी नहीं बन सकता, पहले फौजी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्फेंट्री के फौजी हैं, बल्कि अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स या नेवी से मुंसलिक हैं तो भी आप SSG में शामिल होकर कमांडोज बन सकते हैं, क्योंकि SSG मिलिट्री से ही बंदे चुनती है। दोस्तों सिविलियंस का SSG से कोई भी ताल्लुक नहीं है, यानी ये कि आपको SSG कमांडो बनने के लिए पहले आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा और अगर आप आर्मी के किसी भी यूनिट से ताल्लुक रखते हैं तो आप SSG को ज्वाइन कर सकते हैं। SSG में शमूलियत इख्तियार करने के लिए आर्मी में 5 साल तक सर्विस होनी चाहिए, लेकिन अब 2 से 3 साल की सर्विस के फौजी भी SSG के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों यानी कि मतलब परफॉर्मेंस ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ परफॉर्मेंस 2-3 ਸਾਲ ਚ ਏਡੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ज़हन नशीन कर लें कि SSG में शामिल होने के लिए आप जब चाहें अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि SSG में वैकेंसीज आने पर ही SSG की टीमें मिलिट्री की हर यूनिट्स का चक्कर लगाती हैं और फौजियों को मोटिवेट करती हैं। SSG में शामिल होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से SSG को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ना कि किसी
ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। एसएसजी में अप्लाई करने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट किया जाता है, जो कि एक फौजी के लिए मामूली बात है। इस फिटनेस टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की दौड़ भी शामिल है। फिटनेस टेस्ट पास कर लेने के बाद मेडिकल किया जाता है और सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है। दोस्तों, एसएसजी को ज्वाइन करने के लिए हड्डियों का मजबूत होना और कुव्वत ओ भाई साहब, क्या बात है यार। बर्दाश्त का होना बहुत जरूरी है। अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है तो आप एसएसजी को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान की कमांडो फोर्स है, ना कि कोई फिल्म है। दोस्तों, इसके बाद एसएसजी में सिलेक्शन के लिए जवानों को चिराट भेज दिया जाता है। सिलेक्शन सेंटर के अंदर दाखिल होते ही सामान को गेट पर रखकर फ्रंट रोल लगाने की एक गरजदार आवाज आती है और आपको फ्रंट रोल लगाने पड़ते हैं, चाहे आपने कितना ही कीमती लिबास जेबे तन किया हो। एसएसजी की ट्रेनिंग में अच्छा, आ लगाना पैंदा सब नु पहले आके। हर आने वाला दिन जवान के लिए मुश्किल तरीन ही साबित होता है। दोस्तों, एसएसजी ट्रेनिंग के जिस मरहले का जिक्र मैं आप करने जा रहा हूँ, ये एसएसजी ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। एसएसजी के जवानों के जिस्म को मजबूत करने के लिए इनको एक बोरी में डालकर इनकी खूब छितरोल की जाती है और इसके लिए एक छितर का इस्तेमाल किया जाता है और ये छितरोल उस वक्त तक जारी रहती है। भाई ताड़े चो अगर कोई बंदा थाने गया ना, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। बुलबुल ਜਿਹੜੀ है ना वो ब्लू ब्लू हो जाती है। जब तक आप निढाल ना हो जाएं और अगर आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो इसके नतीजे में छितरोल ज्यादा की जाती है। अब जाहिर सी बात है कि एसएसजी कमांडोज में इतनी कुव्वत बर्दाश्त तो होनी चाहिए, इसीलिए एसएसजी कमांडोज को पूरी दुनिया में एक खास मकाम हासिल है। इस छितरोल से बचने का एक ही तरीका है कि आप मार खाएं और चीखने चिल्लाने से गुरेज करें, क्योंकि जितना चीखेंगे छितरोल उतनी ज्यादा होगी। दोस्तों, इस मार कुटाई का असल मकसद यही है कि अगर एसएसजी कमांडो दुश्मन के हाथ लग जाए तो वो मार बर्दाश्त कर ले। उसमें कुव्वत बर्दाश्त का पैमाना इतना ज्यादा हो कि वो दुश्मन की दी हुई किसी भी तकलीफ अच्छा प्रॉपर कली कली डिटेल देख के उस हिसाब ਨਾਲ ट्रेनिंग कराई जा रही है। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ मतलब कि अगर कोई इस कंडीशन ਚ ਆ ਕੇ मतलब फौजी ਉਹਨੂੰ फायर ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਚੜ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ नहीं, उस चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है यार। का आसानी से सामना कर ले। इसके बाद के मरहले में जवान को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल लेकर जाया जाता है। ये भाई यार सब नु खतरनाक है यार, सोच के यकीन करो घबराहट होने लग पैंदी। तकरीबन 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहां आपको हेलीकॉप्टर से एक जंप लगवाई जाती है। हेलीकॉप्टर से लगाई गई पहली जंप में हर जवान को मौत ही नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई कमांडोज भी इस तरह से नहीं मरा। दोस्तों, आर्मी का तरीकाकार ये है कि पहले 2-3 दिन कमांडोज को हेलीकॉप्टर में ही घुमाकर वापस लाया जाता है ताकि जवानों के हौसले पस्त न हो, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया जाता है। हर कमांडो के जहन में यही सवाल होता है कि पैराशूट खुलेगा या नहीं, और फिर पैराशूट खुल जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हर कमांडो के पास एक पैराशूट एक्स्ट्रा होता है ताकि अगर एक पैराशूट ना खुले तो दूसरा इस्तेमाल किया जा सके। जब फ्री फॉलिंग का सिलसिला शुरू होता है तो जवानों को इन फ्री फॉलिंग्स में मजा आना शुरू हो जाता है। जो जवान पहली फॉलिंग पर डर रहा होता है वो बाद में शौक से इन फ्री फॉल जंप्स को एंजॉय कर रहा होता है। ओह भाई साहब, इस पूरी ट्रेनिंग का एक और सबर आजमा हिस्सा भी होता है कि ट्रेनिंग के दौरान जवानों को एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करना होता है, जो पिशावर से लेकर चिराट तक होता है, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है। ये सफर जवान को 30 किलोग्राम मिलिट्री गियर के साथ तय करना पड़ता है। इसके अलावा 36 मील का सफर 12 घंटे में भी तय करना होता है। आर्मी रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर जवान की दौड़ बढ़ा दी जाती है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की सजाएं भी दी जाती हैं। ट्रेनिंग के इस प्रोसेस में मार्शल आर्ट्स, जुडो, कराटे और स्पेशल वेपन्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा पार्ट फेवरेट है थोड़ा जंगल में सर्वाइवल स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें सबसे मुश्किल काम सांप को खाना या किसी जानवर का कच्चा गोश्त खाना और इसके अलावा प्यास लगने की सूरत में जानवर का खून पीना भी इस ट्रेनिंग में शामिल है। दोस्तों, ये तो लिटरली पिलाया जा रहा है उन्होंने यार, कुछ भी नहीं
ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ भाई मतलब फुल रिस्की काम है यार। जवानों को एक कुत्ते के मुंह से हड्डी भी छीननी होती है और यकीन यानी कि मोदी दे मुंह से हड्डी भी कटनी पैनी है जवानों को। ये एक बहुत मुश्किल काम है जिसका असल मकसद ये होता है कि एसएसजी कमांडोज को हर नामुमकिन काम को मुमकिन करना पड़े। दोस्तों इसके बाद आता है मैप नेविगेशन ट्रेनिंग। दोस्तों इस मरहले में जवान को पहले बुनियादी चीजें सिखाई जाती हैं। इसके बाद इसको एक जंगल के दरमियान अकेला छोड़ दिया जाता है जहाँ से इसको मतलूबा जगह पर अपने मुकर्रर करदा वक्त पर पहुंचना होता है। मैप नेविगेशन में आपको नॉर्थ साइड का पता होना जरूरी है और अगर आपको नॉर्थ साइड का पता चल जाए यार लिटरली अगर आप दूरों देखेंगे ना तो आप पता नहीं लग रहा है कोई बैठा के नहीं बैठा तो आपको क्या सी प्रॉपर उस हिसाब नाल ड्रेसिंग। अच्छा नीचे जेड़ा लेटे है वो तो बिल्कुल ही नहीं पता लग रहा है, सिर्फ गंदा करके पता तो लग रहा है। अपनी चारों सिम्त का पता चल जाएगा। मैप नेविगेशन के इस मरहले से हर फौजी को गुजरना पड़ता है क्योंकि ये फौजी के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों जंगल में अगर सूरज नजर आ जाए तो फौजी को नॉर्थ साइड का पता चल सकता है और अगर रात हो तो चांद से पता चल जाएगा और अगर चांद भी नजर ना आ रहा हो तो सितारों से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों ये वही सितारे होते हैं जिनको दुब्बे अकबर कहा जाता है। अगर काली रात की वजह से सितारे भी नजर नहीं आ रहे तो आसपास मौजूद कब्रों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। कब्रा तो कितना पता लगना यार। अगर कब्रें नहीं हैं तो दरख्तों पर लगे फलों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं और अगर फल भी नहीं मिल रहे तो आप वो जगह तलाश करें जहां थोड़ा पानी जमा हो, फिर उस पानी में किसी दरख्त का पत्ता रखकर उसके ऊपर सुई नुमा कोई चीज रख दें। दरख्त का वो पत्ता आपको नॉर्थ की डायरेक्शन बता देगा। दोस्तों इसके बाद जवान का एक टेस्ट एक बहुत बड़े डैम में होता है। जवानों के हाथ पांव बांधकर एक G3 राइफल और सामान समेत एक गहरे डैम में फेंक दिया जाता है। भाई साहब ये तो प्रॉपर मारन दी तैयारी के चक्कर से सुटदे आ मतलब कि ना प्रॉपर मतलब ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਪ੍ਰॉपर मतलब ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਆ। इस मरहले में इनको जिंदगी मौत से जंग लड़ना होती है। एक बड़े बैग के साथ डैम के खड़े पानी से बाहर आना कोई आसान काम नहीं है। आपको अपने हाथ पांव खोल भाई ਉੱਥੇ ਹੱਥ खोल ले कोई आसान काम नहीं हैगा, बाकी सामान देख साइड कर ते रह गया। साहिल तक पहुंचना होता है और ये मरहला भी पूरी ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। अगर इस ट्रेनिंग के दौरान आप क्विट कर देते हैं तो आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती बल्कि वापस अपनी ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। SSG में आपकी किस्मत का होना भी बहुत जरूरी है। अगर फाइनल परेड डे से पहले ट्रेनिंग के दौरान आपका बाजू या पाँव फ्रैक्चर हो जाए तो आप कमांडो का बैज हासिल नहीं कर पाएंगे और ऐसा कई लोगों के साथ हो भी चुका है। ट्रेनिंग के दौरान बाजू या पाँव की टूटी हुई हड्डी तो जुड़ जाती है लेकिन आपका पूरे 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी कमांडो ना बनने का दुख पूरी उम्र नहीं जाएगा। दोस्तों एक जवान का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के और कमांडो का बैज लगने के बाद वो एक आम फौजी नहीं रहता बल्कि उसके अलाउंसेस और उसका पूरा प्रोटोकॉल चेंज कर दिया जाता है। दोस्तों कमांडोज पूरी आर्मी में वो चंद फिर इस तरह शो होते हैं प्रॉपर हीरो रियल हीरोज हैं। हीरे होते हैं जिन्होंने पूरी आर्मी को रोशन करना होता है। इन कमांडोज का काम मुश्किल तरीन टास्क को कंप्लीट करना होता है और इसीलिए ये अपनी बॉडी पर भाई क्या स्वैग है यार। बहुत तवज्जो देते हैं। रोजाना की वर्जिश के अलावा ये अपनी डाइटिंग को भी बैलेंस करते हैं। इन सारे मुश्किल मरहलों से गुजरने के बाद एक जवान इस काबिल होता है कि वो SSG का बैज हासिल कर सके। इसके अलावा SSG कमांडोज को ट्रेनिंग के लिए बैरूने मुल्क भी भेजा जाता है। दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस फोर्स ISI में भी SSG कमांडोज को भेजा जाता है और उसके बाद इनको खुफिया ऑपरेशन सौंपे जाते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी SSG की ट्रेनिंग पूरी दुनिया की तमाम स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग से ज्यादा खतरनाक है। एक अकेला SSG कमांडो 20 फौजियों पर भारी होता है और SSG कमांडोज दुनिया भर की तमाम स्पेशल फोर्सेस में पहले नंबर पर जानी जाती है। दोस्तों शायद आपको याद होगा कि जब खाना काबा पर हमला हुआ था तो पाकिस्तानी कमांडोज ने ਉੱਥੇ भी पाकिस्तानी कमांडोज गए सी तो उन्होंने जाके इंजन बेड़े ऐसी काम आया जुर्रत और दिलेरी से खाना काबा में मौजूद दहशतगर्दों का न सिर्फ मुकाबला किया था बल्कि उनको सफाए हस्ती से मिटा दिया था। और अगर आप इस वाकये की मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो इस पर हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके
ਦੋਸਤੋ ਆਸਿਆ ਦੀ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਪ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਕੈਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆ ਚੈਨਲ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਸਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਲਾਤਾਦਾਦ, ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨੂਆ ਮਾਨੂਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਾਂ, ਸਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਆ। ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 7000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਗਰ 1000 ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਇਧਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਰੌਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਗ ਲਵ ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ।